It seems that the Samajwadi Party Supremo Mulayam Singh is for Neta worship in UP. Mulayam has told UP's Babudam to respect ministers or be sacked. Mulayam has told UP's bureaucracy to respect ministers. Now, this comes even on a day when we are telling you about how the bureaucrats and politicians in India seem to think that they're above the law, they can get away with anything. At a time when we've been bringing you all these stories, here's yet another example of how the powerful think that they're above the law in this country. Mulayam Singh has told UP's bureaucrats to respect ministers or be sacked. That is the diktat coming from the Samajwadi Party Supremo. Amir Haq joins us on the phone line. Amir, put into perspective for us what exactly Mulayam was saying and contextualize it. What was he saying in what context? Well, Rukmini, Mulayam Singh was speaking to party workers in the party office as he does very often these days. And he was obviously trying to energize the party workers for the coming Lok Sabha elections. And he's been doing that over the last 1 year and has always, tried to win back the confidence of voters. Obviously, the last time around, last year in the assembly elections, Samajwadi Party came back with a thumping majority. But right now, there's obviously an anti-incumbency associated with the government once it starts working. And now when the elections are expected after over 1.5 years of SP government having come to power, he's obviously trying to consolidate his vote bank, win the trust of voters. And that is why he's always said that if the officers do not listen to you, you speak to the ministers concerned. If they do not listen to you, then you come back to me. Right. I will have the ministers and the officers respond to your problems. So, in a way, he's trying to win back the confidence of the people and trying to prepare them for the coming election. All right, Amir, let me in fact go across to Akhilesh Singh, Congress leader, who's with us on the phone line. Mr. Singh, what is your initial reaction to Mulayam's diktat? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी कब तक शिकायत करेंगे? 1 साल हो गए। कभी अपने अधिकारियों की कमियों की शिकायत, कभी मंत्रियों की कमियों की शिकायत, कभी मुख्यमंत्री की कमियों की शिकायत। तो शिकायत किससे कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं? तो ये तो नहीं चलेगा ना। आप ही मुखिया हो, आप शिकायत कर रहे हो। अगर आप चीजों को ठीक नहीं कर पाते हो तो जनता ने आपको सत्ता दी है, फिर तो आप अपने आप हट जाओ। अगर नहीं कर पा रहे तो इस तरह से सिर्फ शिकायत करके चीजों को डायलूट नहीं किया सकता। जो चीज खराब है, जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे ठीक करिए, अदरवाइज जनता को परेशान मत करिए, आप हटिए। अच्छा, पर अखिलेश सिंह जी, इस मामले में आपका स्पेसिफिक व्यू क्या है? मुलायम सिंह जी ने कहा है ब्यूरोक्रेट्स को और बाबूस को कि मिनिस्टर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इलेक्टेड लीडर्स और मिनिस्टर्स जो है वो उनके ऊपर प्रोटोकॉल में तो आते हैं, वो ठीक है, वो उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हें भी दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर इंसान को हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए कहीं जरूरी नहीं है कि लिखा कहा जाए तभी सम्मान करें। प्रश्न यहाँ ये है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट किसी पॉलिटिशियन को किसी क्राइम में, किसी इलीगल एक्टिविटीज में ट्रैप कर रहा है, वो भी हायर ऑफिसर्स के निगरानी आदेश के बाद, तो उस पॉलिटिकल पर्सन पे कार्रवाई न करके उस ब्यूरोक्रेट पे आप कार्रवाई करके क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो ब्यूरोक्रेट हो, अगर हमारे पार्टी के किसी भी लीडर पे हाथ डालोगे, चाहे वो भले ही गलत हो, इलीगल हो, आप उसे छुओगे तो आपको उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो डिमोरलाइजेशन भी है ना ब्यूरोक्रेसी का। Right. ये भी तो नहीं होना चाहिए। Let me also now go across to Ramashray Kushwaha, who's Samajwadi Party leader, with us on the phone line. Mr. Kushwaha, आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट किया है मुलायम सिंह जी ने, इस तरह के स्टेटमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स के दबाव में आके अपना काम नहीं कर सकते ठीक से, अगर इस तरह के थ्रेट्स दिए जाएंगे तो? देखिए, ऐसा दबाव की कोई बात नहीं कहा है माननीय नेताजी ने। उन्होंने केवल एक बात कही है, कोई संस्कार भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है। बड़े भाई को छोटे भाई को बड़े भाई के सामने किस तरीके से रहना चाहिए, अच्छे रिश्ते हैं, शासन प्रशासन में रिश्ते ऐसे होने चाहिए। हमेशा शासन बड़ा भाई की तरह होता है, प्रशासन छोटे भाई की तरह होता है। और कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ संस्कार भी होते हैं, किस तरीके से छोटे को अपने बड़े से बात करना है, अपने बॉस से किस तरह बात करना है, ये थोड़ा तहजीब तो होनी चाहिए ना। अच्छा,
पर मिस्टर कुशवाहा, किस बारे में क्या क्या जरूरत थी कि उन्होंने ऐसे आके स्टेटमेंट किया? कुछ इंसिडेंट हुआ है या कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं रिसेंटली जहां डिफाइंस देखा गया है? किस वजह से उन्होंने ऐसा इस तरह के स्टेटमेंट किया? लगातार ये देखा जा रहा है कि माननीय नेताजी ने जो बात कही है बिल्कुल सच है। ब्यूरोक्रेट से किस तरह मंत्री और विधायक और सांसद से बात करनी चाहिए, ना बात करने का, और जो हुक्म आता है मंत्री का और विधायक का और सांसद का, उसका किस तरीके से पालन करना चाहिए। माननीय नेताजी को लग रहा है कि शायद जिस तरीके से पालन करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए इस बात को कहा है। पर आपको नहीं लगता कि पब्लिक सर्वेंट के लिए पब्लिक सर्विस में सब इक्वल हैं? नहीं, ये सब कहने की बात है, सब इक्वल हैं। अभी काम कराने की ड्यूटी भी मंत्री और विधायक और सांसद की होती है। आप पब्लिक के काम यदि विधायक और मंत्री और सांसद नहीं कराएगा अधिकारियों के द्वारा, अधिकारी हैंड्स होता है, हेड और आदेश देने का काम तो मंत्री का होता है, और यदि काम नहीं होगा तो भी जनता यही कहेगी कि इनकी सरकार ठीक नहीं है। अच्छा, लेट मी गो बैक टू अखिलेश सिंह हु इज आल्सो विद अस। अखिलेश सिंह जी, आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर्स के दबाव में आके ब्यूरोक्रेट्स अपना काम नहीं कर सकते? आपकी पार्टी में आदिर चौधरी के अगेंस्ट ये केस किया हुआ है, पर आपकी पार्टी कह रही है कि वो गिल्टी नहीं है मॉब को इंसाइट करने के लिए। वो भी तो डीएम के अगेंस्ट कुछ कर रहे थे। All right, I think we've lost the line there with Akhilesh Singh. Let me go back to Mr. Kushwaha, who's still with us. Mr. Kushwaha, बहुत सारी आजकल ऐसे केसेस आई हैं जहां ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि मिनिस्टर्स के दबाव में वो अपना ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आने से उनको ज्यादा डर नहीं लगेगा अपना ड्यूटी करने में? बहुत गलत बात है। ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट से बोलता है कि मंत्री के मिनिस्टर्स के दबाव में हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप निश्चित समझ लीजिए, आप भी मीडिया में है, कोई भी अधिकारी गैर कानूनी तो काम करेगा नहीं। मंत्री का दबाव क्या होता है? जो लीगल काम है वही करे, और कम से कम समाजवादी सरकार में कोई भी मंत्री इलीगल काम तो नहीं करा रहा है। जो लीगल काम है उसको आपको करना है। नहीं, सरकार का मतलब क्या होता है? पर मिस्टर कुशवाहा, रिस्पेक्ट इज कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड, ऐसे कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का डिक्टाट करके और इस तरह कैसे? रिस्पेक्ट, डिमांड और कमांडेड का मतलब नहीं होता है, लाइन ऑर्डर का मतलब होता है। यहाँ सरकार लाइन ऑर्डर कायम करना चाहती है, काम कराना चाहती है। यहाँ रिस्पेक्ट दे या न दे, काम करे वो। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स मंत्री के पैर छुए, ये मैंने रिस्पेक्ट की बात नहीं करना हूँ। सलूट ना करे लेकिन काम करे। काम तो लेना हमारी जिम्मेदारी में आता है ना। अधिकारी जब काम नहीं करता है तभी डांटना पड़ता है। All right, Mr. Kushwaha, thank you for talking to Headlines today. Let me go across. All right, we have with us on the phone line Vijay Pathak, spokesperson of the UP BJP. Mr. Pathak, what is your initial reaction to this diktat which has been issued by Mulayam Singh? नहीं, मुलायम सिंह जी बार बार अपने मंत्रियों के क्लास देने को कहते हैं, और अभी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले जिस तरह से मंत्रियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, जनता को ध्यान होगा कि सफाई में उन्होंने कहा था कि केवल एक मंत्री यानी शिवपाल यादव के बारे में कहा था कि वो विभाग अच्छा काम कर रहा है, और लगातार मंत्रियों पर सवाल खड़े किए। और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दागी छवि के लोगों को ले लिया गया। वो पार्टी के मुखिया हैं, अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी की नीतियों के कारण वो गैरअप कर सकते हैं, उनकी बैठक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो कह रहे हैं और जो बातें आती है उसकी कुछ कार्रवाई हो तो समझना है। इन 10 महीने की सरकार में इतनी डिस्क्रेडिट सरकार हुई है, ये पहली सरकार है जो शुरुआती दिनों में स्थिति ये हो रही है।